गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडेज टॉपिक इज ओम्स लॉ। बिफोर इट we have studied about the electric current, potential difference and the charges and the properties of the charges we have studied. So this is a new topic for you, Ohm's law. Before it I want to explain some things कि in a conductor there will be equal number of electrons and the positive charges inside it, and these all are the free electrons. The electrons are moving this side, some electrons are moving this side, some are moving this side, some are moving this side, some are moving this side randomly, and when they hit by positive charge, positive charge, positive charge, this is the condition of the thermal velocity. What is the meaning of thermal velocity? जब भी कोई कंडक्टर हमारा एट रूम टेम्परेचर पर होता है, तो रूम टेम्परेचर का मतलब है 27 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स 300 केल्विन. तो एट 300 केल्विन इट इज गेटिंग द एनर्जी and the electrons will start to move in randomly direction. This electrons is coming this side and there is a positive charge and will go this side. So we will see that due to thermal velocity electrons are moving, electrons are moving, but some are moving this side, so then some are moving this side. Some are moving in this direction, some are moving in this direction, some are moving in this direction, some are moving in this direction. Then we will see कि net velocity will be 0. Why? Because velocity is the vector quantity and it will cancel out to each other, and net velocity will be 0. When net velocity will be 0, then we can say that thermal velocity is not responsible for the flow of electrons in a single direction, and we will see it is not flowing like this because there is no velocity. When there is no velocity, then due to thermal velocity current will not flow, current will not flow. Now I will introduce a new terms here, drift velocity. What is the meaning of drift velocity? In drift velocity I will take a conductor and in this conductor electrons are moving in this side, some are moving this side, some are moving this side. I will connect it with potential difference or an electric field across it, and due to electric field positive charge will give some effect on these electrons, and the electrons in going in this direction. Then after connecting this electric field it will move in this direction, it will drifted in this direction, it will drifted in this direction. Then what will we see? We will see that all electrons will attracted by this positive and all electrons will drifted towards this positive electric field. Now we are having the velocity and we will get net velocity, and when we will get net velocity then we can say that there will be acceleration and there it will produce a current. So we can say that when electrons are moving
in this side, then current will move in this side. There is a relation I equal to NEA/VD. I equal to NEA/VD. What is the meaning of VD? Drift velocity. Why we are giving the name drift velocity? Because drift velocity means they all are drifted towards positive. When they are drifted towards positive, then we are saying drift velocity, and drift velocity is the formula minus E tau upon m. Tau is the relaxation time, m is the mass of electrons, E is the elementary charge, E is the electric field across this conductor. So हमारे पास एक चीज तो ये पता चली कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन मिलती है, और इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन की मिलने की वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही रेस्पॉन्सिबल है करंट के फ्लो के लिए. मीन्स इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए या करंट किसी भी एक कंडक्टर में फ्लो हो रही है तो उसके लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है, थर्मल वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल नहीं है. दूसरी चीज, एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स अब करंट पास नहीं, मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे, तो आंसर है यस, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव बट इन रैंडमली डायरेक्शन. व्हेन इट विल मूव इन रैंडम डायरेक्शन, देन वी कैन सी कि दे विल कैंसिल आउट ईच वेलोसिटी and net velocity will be 0. That's why it will not make a current. So now we will come on our portion. We are taking a conductor and there are electrons, and when the current will flow, when we connect it with a battery or a cell, और जब हमने इसके अक्रॉस सेल को इंट्रोड्यूस करा, प्लस माइनस सेल को हमने, पोटेंशियल डिफरेंस इसका V है, जब मैंने किसी कंडक्टर के अक्रॉस इसे इंट्रोड्यूस करा, देन वी नो dV अपॉन dr इक्वल टू माइनस E. मीन्स दैट dV मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, dr इज द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. देन अगर मैं कहीं पर भी कोई बैटरी को या सेल को इंट्रोड्यूस करता हूं तो उसके अक्रॉस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, और हम बोल सकते हैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी. हम बोलेंगे कि कहीं पर भी किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये हमें पता होना चाहिए. जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट टू मूव इन दिस डायरेक्शन एंड द करंट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज I इक्वल टू NEA/VD minus, and in this relation VD is the drift velocity, और इसके अंदर drift velocity की डायरेक्शन ये वाली है, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी. दिस माइनस विल शो दिस. सो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग in this direction. When it is moving in this direction, then we can say at Ohm's law ने एक रिलेशन दिया. क्या रिलेशन दिया बच्चों? ये कि अगर मैं जितने भी एक्सटर्नल फिजिकल क्वांटिटी है उसको अगर मैं कांस्टेंट रखता हूं तो मैं देखूंगा यहाँ पर कि अगर यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I, तो मैंने यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व करा. क्या ऑब्जर्व करा? मैंने नहीं, मतलब ओम्स ने ऑब्जर्व करा कि अगर मैं यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर रहा हूं तो मेरा करंट 2 एम्पियर है. अगर मैंने यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी को इंट्रोड्यूस करा तो मेरा करंट, मैंने मेजर करा विद एमीटर कि 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है. अगर मैंने 5 वोल्ट की बैटरी करी तो यहाँ पे 5 एम्पियर. मीन्स दैट हमने एक रिलेशन फाइंड करा. हमने यहाँ पे पोटेंशियल को वेरी करता रहा, ये वेरिएबल का साइन है, ये मैंने यहाँ पे पोटेंशियल को वेरी कर रहा हूँ. जब मैं पोटेंशियल को वेरी कर रहा हूँ
तो मैंने देखा कि हर टाइम मैं पोटेंशियल की वैल्यू को चेंज कर रहा हूं तो मेरे कंडक्टर की जो करंट है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो इफेक्टिव हो रही है। और मैं एक रिलेशनशिप में पहुंचा, मैंने एक रिजल्ट देखा। क्या रिजल्ट देखा कि अगर मैं अपनी एक्सटर्नल फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट रख रहा हूं तो एक रिलेशन आया कि करंट फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर इज प्रोपोर्शनेट टू द पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्टेड अक्रॉस दिस कंडक्टर एट कांस्टेंट एक्सटर्नल फिजिकल क्वांटिटी। like temperature, pressure, etc. The current flowing in a conductor is directly proportionate to the potential difference across a conductor. So we have a relationship, V is directly proportional to I, current is proportionate to I, और V can write I is in directly proportional to V, लेकिन हम इसे ही मान के चलते हैं V is directly proportional to I. This is the relationship. This relationship is given when external physical quantity are constant. Why? If temperature is not constant, then the relaxation time between these electrons, जो electrons यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं और फिर यहां से यहां पे जा रहे हैं, तो दिस टाइम, ये जो कोलिजन हुआ यहां पर इसका और इसका, इसके एवरेज को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, टो। रिलैक्सेशन टाइम आर द मीन टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स, कि इस बीच में इलेक्ट्रॉन्स रिलैक्स है, किसी और पॉजिटिव चार्ज से वो कोलाइड नहीं कर रहा है। जब वो किसी और चार्ज से कोलाइड नहीं कर रहा है तो ये टाइम इसका रिलैक्सेशन टाइम है, और रिलैक्सेशन टाइम होता है टो। इसका एक फॉर्मूला होता है Vd इक्वल टू माइनस ई टाउ अपॉन एम। तो बच्चों ये जो टाउ है, अगर ये चेंज होगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज रैपिडली मूव करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स रैपिडली मूव करेंगे तो यहाँ पे कोलिजन जल्दी जल्दी होगा। जब कोलिजन जल्दी होगा तो टाउ जो है ये चेंज होगा, और टाउ की वजह से Vd चेंज होगा, और Vd की वजह से आप देखिए Vd की वजह से करंट चेंज होगा। जब Vd की वजह से करंट चेंज होगा तो हम बोलेंगे कि करंट विल बी इफेक्टिव ड्यू टू टेम्परेचर। इसी वजह से मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, सो दैट मैं अपना एक रिलेशनशिप को फाइंड कर सकूं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और इस रिलेशनशिप को हमें दिया है बाय ओम। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। रिलेशन टाइम, कोलिजन हुआ। अब देखिए V इक्वल टू, मैं यहां पर एक फॉर्मूला बनाऊंगा, ये रिलेशनशिप है V इक्वल टू RI, दिस R इज proportional constant, and we have given this name R equal to resistance. This R is the resistance. This R is the resistance. And new, this is the characteristics of given मटेरियल। इस मटेरियल की ये क्वांटिटी है। व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस? नाउ रेजिस्टेंस मींस ऑफर्ड बाय कोलिजन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे कोलिजन होगा,
जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कोलाइड करेंगे, कोलिजन करेंगे, ये कोलिजन ही होता है रेजिस्टेंस। ये ऑफर्ड होता है, कोलिजन ऑफर्ड करेगा। कोलिजन क्या कर रहा है कि अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसमें कोलिजन जो होगा एक रेजिस्टेंस रिस्ट्रिक्टेड करेगा इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से। अगर हम बच्चे, अगर मैं बात करता हूँ अपनी, मैं सड़क पे जा रहा हूँ सपोज करो, तो अगर एक सड़क पे जा रहा हूँ, एक पूरा पाथ है मेरे पास, और मेरे पास दो, एक मेरी मोटरसाइकिल, दूसरी मेरे फ्रेंड की है, हम दोनों इजीली मूव कर रहे हैं। 3 इलेक्ट्रॉन, 3 जने जाएंगे तो 3 जने मूव करेंगे, 10 जने जा रहे हैं, 20 जने जा रहे हैं। लेकिन अगर 100 जने उसी पाथ पे चलेंगे तो कोलाइड होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सभी को संभाल के चलना पड़ेगा। सेम हियर, जब यहाँ पर इसका मतलब रेजिस्टेंस का मतलब हो गया यहाँ पे R इक्वल टू V अपॉन I, कि अगर कोलिजन हमारा बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन से कोलिजन आपस में बढ़ जाएगा तो करंट हमारी कम हो जाएगी। इसका मतलब मोर कोलिजन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज and electrons will provide less current. So this is the Ohm's law. This is the relationship. This is the relationship for the calculation. हम इसे और भी मोस्ट डीपली में पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस होता क्या है, बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे इसे रेजिस्टेंस को कि होता क्या है। और हम लोग इसका रिलेशनशिप, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये चीज़ें। अब बेटा यहाँ पर एक ग्राफ बनकर आया, वो ग्राफ क्या है, वो ग्राफ होगा हमारा इस टाइप से, हमारा ग्राफ बन जाएगा। We are taking the I and the V on the XY axis, and we will see at 0 when the voltage is 0, then there will be no current. When voltage is 2 ampere, voltage is 2 volt, current is 2 ampere. Voltage is 4 volt, current is 4 ampere, like this. And we will see it is a straight line. When it is a straight line, then we can say that this is the R constant, and this slope will give you the current, and this is the current, this is the potential, then this is will give you the R equal to V upon I, because slope equal to perpendicular upon base, तो R equal to V upon I। अगर किसी भी मटेरियल की ये कंडीशन होती है तो हम इसे बोलते हैं वो मटेरियल हमारा ओमिक कंडक्टर है। इस तरह के मटेरियल को बोलते हैं ओमिक कंडक्टर, विच विल फॉलो द ओम्स लॉ, विच विल गिव यू द स्ट्रेट लाइन कर्व। तो बच्चों ये हमारा ओम्स लॉ के बारे में है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं प्लीज़। और भी इस टाइप की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।